Yes, very good evening, everyone. Welcome back to weekly webinar cum training sessions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome to all attendees here. So thank you so much for joining us today's session. I am Sampada representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. Today we are going to talk about delightful user experience with the Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introductions of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into software sales, services, solutions, implementations, and development. So first we deal with Tally Prime, the best accounting software. Second, SAP Business One, the business management software and streamline company's process. Third one is Bitrix 24. It's a CRM, projects, and collaborations tools. And fourth one is Great HR. It's HRMS software and complete payroll solutions. So now speakers are available here. So Aarti and Tarun, are you here? Yes, ma'am. Good evening. Yes, Good ma'am. evening. Good evening. Welcome. And moving ahead to the next live demonstration. So Aarti, over to you. Start Okay. here. Yeah. Thank you. Ma'am, my screen is visible? Yes. Okay, thank you. Hello everyone, myself Aarti Narode, representing on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. Here is our Rajlakshmi family. Welcome to all of you. So today's topic is a delightful user experience with Tally Prime. First, on the fly features enablement and ledger creation. In this feature, we can add address, multi-address, contact detail, GST registration, MSME registration and opening balance. लेजर क्रिएट करते टाइम पे हम कस्टमर का एड्रेस ऐड कर सकते हैं, मल्टी एड्रेस का भी वहाँ पे ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट डिटेल, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन हम वहाँ पे कर सकते हैं लेजर क्रिएट करते टाइम पे, और ओपनिंग बैलेंस भी डाल सकते हैं. नेक्स्ट, इजीली कॉन्फ़िगर लेजर एंड वाउचर्स. फर्स्ट है कॉन्फ़िगर लेजर. वी कैन ऐड और चेंज लेजर इंफॉर्मेशन with the help of more details. Example, general details, party details, स्टेशनरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स. और लेजर क्रिएट करते टाइम पे हमें राइट साइड में मोर डिटेल्स का ऑप्शन दिया जाता है. वहाँ पे हमें हिस्ट्री शो होती है, जैसे जनरल डिटेल्स, पार्टी डिटेल्स, स्टेशनरी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के ऑप्शन रहते हैं. हम वहाँ पे जाके चेंज भी कर सकते हैं. अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं. सेकेंड है कॉन्फ़िगर वाउचर. वी कैन ऐड और चेंज वाउचर इंफॉर्मेशन with the help of more details. Examples, dispatch detail, order details, reference number and date. वाउचर डिटेल में भी हमें राइट साइड में मोर डिटेल का ऑप्शन दिया जाता है. वहां से हम डिस्पैच डिटेल, ऑर्डर डिटेल, रेफरेंस नंबर, डेट चेंज कर सकते हैं. कुछ न्यू ऐड करना है तो वो भी हम वहां पे ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है टॉप मेन्यू. द टॉप मेन्यू इन टैली प्राइम हैज ऑप्शन टू manage your company's Tally Prime applications, user in your companies, and your data storage and sharing. This menu add child item in the menu are also accessible for any screen in Tally Prime. Tally Prime में हम टॉप मेन्यू के फीचर्स जो है वो कौन से भी स्क्रीन से एक्सेस कर सकते हैं. शॉर्टकट्स फ्रॉम एन इजी वे टू use Tally Prime features. Shortcut hotkey to access each option in the top menu in showing what bold capital letter that is underline. हमें शॉर्टकट कीज भी टॉप मेन्यू के लिए हमें शॉर्टकट कीज भी दी हुई है वहाँ पे कैपिटल लेटर में. वो यूज करके हम शॉर्टकट से कर सकते हैं टॉप मेन्यू यूज. राइट बार.
With the help of right bar menu, we can change the date from the selected report, change the period from the selected period, column report and configure the report with different option. हमें राइट साइड में जो ऑप्शन दिए जाते हैं, हमने कौन सा जो भी रिपोर्ट सेलेक्ट किया हुआ है वो रिपोर्ट में हम डेट चेंज कर सकते हैं, पीरियड भी चेंज कर सकते हैं और कॉन्फ़िगर में जाके अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके रिपोर्ट देख सकते हैं. इंटेलिजेंस setup manager for easy troubleshooting. Checklist for troubleshooting. Performance issue of the Tally Prime. Following are some of the checklist item for troubleshooting performance issue in Tally Prime. First, number of client machines, size of the data, network or link speed, type of network, ping speed, RAM capacity and antivirus. अगर हमारा डेटा रिपेयर के लिए रिक्वायर्ड है तो हम ट्रबल शूटिंग में जाके रिपेयर कर सकते हैं. अबाउट पेज फॉर इजीली गेटिंग सपोर्ट. All this info along with host of other info about your Tally installation and environment can be accessed for about page. About report, content information of application, license, data, TDL and the डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन. अबाउट पेज में हमें हमारा टैली का जो भी लाइसेंस की इंफॉर्मेशन है वो हमें वहाँ पे शो होती है. डेटा भी कहाँ पे है, वो डेटा पाथ वगैरह वो हमें वहाँ पे शो होता है. TDL यहाँ पे हमें अबाउट पेज में शो होता है. थैंक यू. Yes, Tarun, over to you. You can start your live demonstration. Yes, ma'am, sure. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. माय नेम इज तरुण एंड आज मैं आपको आज के सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि टैली प्राइम के अंदर कुछ एडिशनल एक्टिविटीज, कुछ अदर फीचर्स के बारे में, जो कि कैसे आपको डेटा मेंटेन करने में और अपना टैली में जितना भी डेटा आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको और इजीली प्रिपेयर करने में कैसे हेल्पफुल करता है. तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे F11 फीचर की. F11 फीचर जो है, अगर आप कंपनी के डेटा में F11 कहीं पे भी प्रेस करते हैं तो इस तरीके की स्क्रीन आपको विजिबल होगी, जिसके अंदर आपको सेक्शन वाइज सारी चीजें मिल जाएंगी. जैसे अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, टैक्सेशन है, यहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस है, पेरोल है एंड अदर्स है. ठीक है, तो जो जो एक्टिविटीज, जो भी फीचर्स आपको यूज करने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से इनेबल करके उसको यूज कर सकते हैं. यहाँ पर ओवरऑल सारी चीजें दी हुई हैं. ठीक है, इसमें अदर एक्टिविटीज में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल मेलिंग एड्रेस का भी है दिया हुआ ऑप्शन, जो कि मोस्टली यूज में भी आता है आपके, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टी के लेजर के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस भी मेंटेन कर सकते हैं. तो मैं लेजर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू आपको एक दिखा देता हूँ. जैसे ऑलरेडी लेजर अगर आप नया बना रहे हैं तो न्यू भी बना सकते हैं, और अगर ऑलरेडी आपने बना रखा है तो वो भी आप ऑल्टर कर सकते हैं. तो जो भी लेजर ऑल्टरेशन स्क्रीन अगर रहेगी आपकी, तो सबसे पहले यहाँ पर आप नाम डालते हैं पार्टी का नाम डालने के बाद उसका अंडर ग्रुपिंग आप सेलेक्ट करते हैं, सन्डी डेटर्स, क्रेडिटर्स या किसी अदर उसमें अगर ग्रुपिंग देना है आपको तो आप वो भी दे सकते हैं. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस स्क्रीन पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी लेजर से रिलेटेड, जो कि आपको ध्यान में रखनी है. जैसे कि मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल है, इसको आप अगर आपको बिल वाइज पूरा ट्रैकिंग बाय ट्रैकिंग करना है तो इस ऑप्शन को यस रख के आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड है. अभी आपने जैसे कि MSME का जो फीचर है जो इनेबल्ड हुआ है 4.1 रिलीज के अंदर, तो इसके लिए ये मैंडेटरी है कि मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल वाला जो ऑप्शन है वो यस होना चाहिए. अगर आपका ये ऑप्शन नो रहता है तो उसके केस में नो रहने पर आपको MSME डालने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. देखिए, अभी जैसे मैंने अगर उस ऑप्शन को नो किया तो आपने देखा होगा यहाँ पर नीचे MSME का ऑप्शन आ रहा था, ये वाला, जो कि हट जाता है.
सेट ऑल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो ये ऑप्शन तभी इनेबल होगा, तभी विजिबल होगा आपका, जब आपका मेंटेन बैलेंसेस बिल वाइबल यस होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्रेडिट जो डिफॉल्ट पीरियड है वो आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। वैसे तो एमएसएमई के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वो 45 डेज है, तो 45 डेज आप यहाँ पर डाल के रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मेलिंग डिटेल्स में आते हैं। मेलिंग डिटेल्स में आपने मेलिंग एड्रेस यहाँ पर डालना है। एड्रेस के अंदर, एड्रेस में आप लेंथ जो है वो 3 से 4 लाइन का लेंथ आप डाल सकते हैं, जितना पार्टी के रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में। इसके बाद स्टेट, कंट्री, पिन कोड, सारी चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको मल्टीपल एड्रेसेस मेंशन करना है तो इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है सेट ऑल्टर मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स। इसमें जा करके आप यहाँ पर जितने भी एड्रेसेस होंगे आपके, आप स्टेट वाइज उसको बना सकते हैं। जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, या किसी भी प्लेस के नाम से बना सकते हैं, स्टेट के नाम से बना सकते हैं, जिससे आपको सुटेबल लगता है वो नाम डाल के और यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, या आप प्राइमरी सेकेंडरी भी कर सकते हैं। तो जब आप एंट्री पास करने जा रहे होंगे तो उस टाइम पर बिलिंग डिटेल्स में बिल फ्रॉम और कंसाइनी शिफ्ट टू, इसके अंदर वो ऑप्शन पूछेगा आपसे एड्रेस टाइप का। तो एड्रेस टाइप में जो आपने यहाँ पर डाला हुआ होगा वही सेम चीज आपको वहाँ सेलेक्ट करनी होगी। जैसे हमने प्राइमरी डाला तो प्राइमरी, सेकेंडरी, इस टाइप से, तो वो लिस्ट आ जाएगी वहाँ पर एड्रेस टाइप की। ये चीज है। अब इसमें पार्टी की जो बैंक डिटेल्स हैं वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं बैंकिंग डिटेल्स में जाके। तो यस करेंगे आप तो यहाँ पर आप सारी चीजें डाल सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पर टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पैन नंबर सबसे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। पैन नंबर आप डालेंगे। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में अगर आप देखेंगे शो मोर करके, तो यहाँ पर काफी सारे टाइप्स जो है वो दिए हुए हैं रजिस्ट्रेशन के। कंपोजिशन है, रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड कंज्यूमर है, गवर्नमेंट एंटिटी है, रेगुलर एसईजेड सप्लायर है। तो जितने भी मेजर या आप बोल सकते हैं जो ज्यादातर के यूज होते हैं रजिस्ट्रेशन टाइप्स, तो वो सारे ही यहाँ पर दे रखे हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे, जीएसटी नंबर पार्टी का डाल देंगे। वो करने के बाद यहाँ पर आपको सेट ऑल्टर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वो अगर आपको यहाँ पर मेंशन करना है, अगर आपकी पार्टी रजिस्टर्ड है एमएसएमई में, तो आप उनसे वो डिटेल्स ले करके अपने इसमें लेजर में डाल सकते हैं। और इसी का ऑल्टरनेटिवली अगर जैसे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेट भी होता है, तो वो अपडेट करने के लिए अगर सपोज करिए आपने कोई ऑलरेडी लेजर क्रिएट कर रखा है और उसमें अगर आपको उनकी डिटेल्स को अपडेट करना है, तो वो आप मोर डिटेल्स में जाके भी कर सकते हैं। जैसे मोर डिटेल्स में गए, यहाँ पर आप शो मोर करेंगे। शो मोर करने के बाद यहाँ पर आपको एमएसएमई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में यहाँ पर जो डला हुआ होगा वो आ जाएगा। अगर हिस्ट्री में जाएंगे आप तो यहाँ पर आपको पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी कि किस डेट पे आपने कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर डाला हुआ है। ये भी आपका अपडेट होगा टाइम टू टाइम, तो आप इसमें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे डिटेल्स। जो भी डे रहेगा आपका एप्लीकेबल फ्रॉम में आपको डे डालना है। उसके बाद टाइप ऑफ एंटरप्राइज रहेगा उस टाइम पे जो चल रहा होगा आपका। जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर 24 डालता हूँ 1 अप्रैल से, तो ये करने के बाद हमें पूछेगा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो ये टाइप आपको सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये सारी डिटेल लिखी हुई होती है बेसिकली। आपका जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसके अंदर सर्टिफिकेट के ऊपर पूरा लिखा हुआ होता है, तो वहीं से देख करके आपको यहाँ पर फीड करना। ठीक है। और इसमें मोर डिटेल्स के अंदर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ और एक्टिविटीज भी आप देख सकते हैं। जैसे कि इन केस अगर मेलिंग डिटेल्स आपको अपडेट करनी है तो उसका भी हिस्ट्री ट्रैक जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मेलिंग डिटेल्स हिस्ट्री में जाकर, मेलिंग डिटेल हिस्ट्री में जाएंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको एप्लीकेबल फ्रॉम करके डेट लिखा हुआ होगा, तो डे वाइज भी आप इसको वो कर सकते हैं। जैसे अगर इन केस कभी वो पार्टी अनरजिस्टर्ड है या रजिस्टर्ड है तो उसकी डिटेल्स भी आप मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन दिया हुआ है जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का, हिस्ट्री में जाके। ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर डे से अगर कोई पार्टी पहले अनरजिस्टर्ड थी और उसको किसी पर्टिकुलर डेट से जब वो रजिस्टर्ड होने वाली है, तो वो चीज आप यहाँ पर डे डाल करके वहां पर आपको एप्लीकेबल फ्रॉम में डे डालना है, और रेगुलर है, अनरजिस्टर्ड है, वो आपको डालना है। और उसके बाद जीएसटी नंबर डालना है। अगर रेगुलर हुआ है तो जीएसटी नंबर डाल के फिर यहाँ पर एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी जो है वो नो रख लेंगे आप, अदर टेरिटरी अगर नहीं है उनका तो। एंड
यूज कॉमन लेजर ये भी नो ही रहेगा आपका। प्लेस ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आप डाल सकते हैं अगर डालना है आपको तो। एंड ई कॉमर्स पार्टी जो है, ई कॉमर्स पार्टी बेसिकली उसके लिए होता है जैसे कि कोई भी ट्रांसपोर्टर पार्टी होती है, उसके लिए लास्ट वाला जो ऑप्शन है, तो उसके अंदर ट्रांसपोर्टर आईडी आ जाएगी उसकी। और ट्रांसपोर्टर पार्टी वो बेसिकली जब आप सेल की एंट्री जैसे करने जाते हैं, उसके अंदर आपको आपने देखा होगा वहां पर ट्रांसपोर्टर आईडी डालने का ऑप्शन आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके अंदर जैसे हम गए, ई वे बिल की स्क्रीन पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर पार्टी अगर आपने बना रखी है तो उसका क्या होगा, लिस्ट में ना नाम आ जाएगा, तो आपको बार बार मैन्युअली फीड अप नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली वहां पर नाम आ जाएगा और वही नाम आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये बेनिफिट है। तो वो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब भी लेजर आप क्रिएट करने जाएंगे, जैसे हमने यहाँ किया, ट्रांसपोर्टर पार्टी का नेम आ जाएगा बेसिकली। यहाँ पर आप डाल देंगे उनको सन्ड्री क्रेडिटर्स में, बेसिकली वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और उसके बाद यहाँ पर उनका क्या रहेगा, जो ट्रांसपोर्टर आईडी होगी तो उनकी ट्रांसपोर्टर आईडी हम यहाँ डाल देंगे। ये डालने के बाद सेट ऑल्टर एडिशनल जीएसटी डिटेल्स, इसको यस करके और यहाँ पर आपको वो स्पेसिफाई करना होगा, ये इज द पार्टी या ट्रांसपोर्टर। इसको अगर आप यस करते हैं तो ट्रांसपोर्टर आईडी अभी मैंने नहीं डाला है, ऐसे आप पूरा डाल देंगे उनका और डालने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये जब भी एक्सेप्ट करेंगे आप, और एंट्री में अगर आप जाकर के देखेंगे तो ट्रांसपोर्टर नेम में जब आप जाएंगे ना तो वहां पर वो नाम आ जाएगा। मैंने ट्रांसपोर्टर नेम करके डाला था तो वो यहाँ पर इस तरीके से आ रहा है। बाकी आप पूरी डिटेल्स डाल करके जब बनाएंगे तो वो इस तरीके से आ जाएगा। अब ट्रांसपोर्टर नेम जैसे मैं सेलेक्ट करूंगा तो जो भी ट्रांसपोर्टर आईडी आपने डाला होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये चीज बार बार डालने की भी नीड नहीं है, तो ये एक फीचर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड इसमें अगर आपने देखा होगा, जैसे लेजर ऑल्ट्रेशन में मैं जाऊं, ये हमने पार्टी का लेजर ऑल्टर किया। अगर यहाँ पर कुछ और एडवांस एक्टिविटीज अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे भी F12 करके आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर काफी सारी चीजें हैं जो दे रखी हैं। इसमें आपको ये नीचे की तरफ अगर मैं व्हाट्सएप की बात करूं, अगर आप व्हाट्सएप इंटीग्रेशन यूज करते हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स का भी एक ऑप्शन होता है, प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप इनेबल कर सकते हैं। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, प्रोवाइड मल्टीपल मोबाइल नंबर्स है, सेट और डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी पार्टी के पास 4 मोबाइल नंबर्स हैं और वो पार्टी चाहती है कि 4 में से प्रायोरिटी पे कोई एक नंबर को सेट करना है, कि मोस्टली जब हम बिल्स को शेयर करें टैली से तो वो डायरेक्टली ये वाला नंबर जो है वो बाय डिफॉल्ट पिक होना चाहिए, तो वो प्रायोरिटी पे कोई एक नंबर भी हम डाल सकते हैं एज अ डिफॉल्ट व्हाट्सएप नंबर। तो वो चीज आपको यहाँ डालनी है। प्राइमरी मोबाइल नंबर आ जाएगा आपका, देन मल्टीपल मोबाइल नंबर्स जो होंगे वो आप यहाँ करके डाल देंगे, यहाँ यस करेंगे। जितने भी नंबर होंगे 4 5 या अगर ज्यादा नंबर भी है तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। वो डालने के बाद एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपका जब ये एंट्री आप पास करने जाएंगे ना तो वो वहां पर मोबाइल नंबर्स में ऑटोमेटिकली वो नंबर आ जाएगा जो आपने यहाँ पर डाला होगा इस पर्टिकुलर पार्टी का। तो ये है आपका लेजर ऑल्ट्रेशन स्क्रीन। अब मैं आपको जो वाउचर लेवल पे जो हम कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं उसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज होती है मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर हम वाउचर लेवल पे गए, ये मैंने एक इनवॉइस खोला, तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें हैं जो देखने को मिल सकती है। जैसे राइट हैंड साइड में जो बार है उसके अंदर आपको जो 3 ऑप्शंस हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जो मोस्टली आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक आया चेंज मोड। चेंज मोड अगर मैं करता हूँ, कंट्रोल एच जिसका शॉर्टकट की है, तो इसमें आपको अगर फ्रेश एंट्री अगर आप करने जाएंगे ना तो यहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं। एक आता है आइटम इनवॉइस मोड, एक आता है एज वाउचर, और एक आता है अकाउंटिंग इनवॉइस मोड। तो 3 तरीके के मोड्स है बेसिकली, मैं दिखाता हूँ आपको। वाउचर्स में गए, अब मैं कंट्रोल एच कर देता हूँ तो यहाँ पर 3 आ गए मोड। तो अगर मुझे आइटम इन्वेंट्री मोड में अगर एंट्री करनी है तो मैं आइटम मोड लूंगा। अब अगर मुझे सर्विस मोड में एंट्री करनी है, जैसे कि कोई भी सर्विस हमने परचेज करी है या सेल करी है, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग इनवॉइस मोड करते हैं। या अगर आपको लेबर चार्जेस या फ्रेट चार्जेस या इंस्टॉलेशन चार्जेस इस टाइप के अगर आपको बिल्स बनाने हैं जो इन्वेंट्री से रिलेटेड है बट उसमें इन्वेंट्री का यूज नहीं है,
तो उस केस में आप अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में भी एंट्री कर सकते हैं। थर्ड वन है आपका एज वाउचर मोड में। एज वाउचर मोड में भी आप एंट्री कर सकते हैं, जो कि डेबिट क्रेडिट मोड होता है यूजुअली। जैसे इसमें हम करते हैं तो डेबिट में और क्रेडिट में जैसे जे भी एंट्री होती है आपकी, तो ये इस तरीके से होगा आपका। एक टैली एजुकेशन मोड पे अगर रहेगा तो कुछ एक्टिविटीज जो है वो आप नहीं कर पाएंगे, तो मैं इसको जस्ट डीएक्टिवेट कर ले रहा हूँ। ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव करके भी हम लोकेशन को वन टाइम के लिए सेटअप कर सकते हैं, जो कि मैं जैसे मैंने भी किया अभी। एंड इसमें वाउचर डिटेल्स में अगर हम देखें तो मोर डिटेल्स में भी आपको कुछ एक्टिविटीज हैं जो देखने को मिलेगी एक एंट्री के अंदर। मोर डिटेल्स में जैसे हम जाते हैं, शो मोर करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको इफेक्टिव डेट का एक ऑप्शन है, डिस्पैच डिटेल्स भी है। आप डिस्पैच डिटेल्स देख भी सकते हैं और अगर अपडेट करनी है तो वो भी कर सकते हैं मोर डिटेल्स में। तो ये शॉर्टकट कीज है। अब सपोज करिए अगर आपने एक एंट्री के अंदर 100 आइटम्स लिए हुए हैं, तो 100 आइटम्स की एंट्री में अगर आपको ऊपर की तरफ अपवर्ड जाना हो और बाकी प्रीवियस जाकर के कोई रिकॉर्ड, कोई भी एक्टिविटी अगर करनी है, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए राइट हैंड साइड में कुछ ऐसी चीज दे रखी है, मोर डिटेल्स, जिसका यूज करके आप वो सब चीजें कर सकते हैं। तो बार बार आपको वो करना नहीं पड़ेगा, एंटर एंटर। राइट, यहाँ पे इफेक्टिव डेट है, एक्सपोर्ट डिटेल्स है, नरेशन है, ऑर्डर डिटेल्स है, पार्टी डिटेल्स है। यहाँ पर आप वाउचर नंबर डिटेल्स भी यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर इन केस आपने कोई वाउचर को डिलीट किया है तो उसको अगर फाइंड करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अनयूज में। ये 13 नंबर का एक बिल दिखा रहा है जो कि 2 तारीख का था, जिसको हमने डिलीट किया है। तो वो डिलीटेड एंट्री भी अगर आपको देखनी है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। राइट, फिर जीएसटी और ई वे बिल डिटेल्स। अब जीएसटी डिटेल्स में अगर आप देखेंगे तो आपका जो पार्टी है उसकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो भी यहाँ पर आ जाएंगी। एंड अपना अभी ये जो जीएसटी डिटेल्स आ रही हैं, फिर इसके बाद यहाँ पर आता है ई वे बिल डिटेल्स। तो ई वे बिल अगर आप बना रहे होंगे ना तो उसकी भी डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। एप्लीकेबिलिटी है, कैंसलेशन है, डिफॉल्ट है, हिस्ट्री भी है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर भी है। अगर आपने ऑलरेडी कोई एंट्री कर रखी है जिसका ई वे बिल बना हुआ होगा तो उसकी एक्टिविटीज को आप ट्रैक कर सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। एंड इसमें नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो रिलेटेड रिपोर्ट्स का है। रिलेटेड रिपोर्ट्स की अगर मैं बात करूँ, कंट्रोल ओ उसका शॉर्टकट की है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ऑल्ट ए से आप टैक्स एनालिसिस देख सकते हैं। देन यहाँ पर आ जाता है स्टॉक क्वेरी। स्टॉक क्वेरी भी आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर बिल में कितने आइटम जो है वो यूज हुए हैं, आपने कितने वही आइटम आपने किस किस पार्टी से परचेज किए हुए हैं और किस परचेज किए, वो सारी डिटेल आपको मिल जाएंगी। तो ये स्टॉक क्वेरी जो है ये भी हम यूज कर सकते हैं एंट्री लेवल पे। तो इसके लिए रिपोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप एंट्री से ही ट्रैक कर सकते हैं। देन यहाँ पर आता है ऑप्शनल एंट्री। अगर सपोज करिए आपको सेल्स की एंट्री के थ्रू ही अगर आपको प्रोफार्मा इनवॉइस बनाना है तो उसके लिए ऑप्शनल का यूज किया जाता है, ताकि वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे इफेक्ट ना डाले, प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट ना डाले, आपका स्टॉक समरी पे इफेक्ट ना डाले, और वो एंट्री आप एज अ प्रोफार्मा के लिए यूज करेंगे। तो उसका जो आपने देखा होगा कि उसके अंदर अगर हम प्रोफार्मा, ये अगर मैं ऑप्शनल करके एंट्री को सेव कर देता हूँ, ऑप्शनल वाउचर्स, और इसका जब मैं प्रिंट लूंगा तो ये कुछ इस टाइप का आएगा, उस पर लिखा हुआ भी आएगा परफॉर्मा इनवॉइस। तो ये एक बेनिफिट है इसका कि आप सेल्स के वाउचर को ही एज अ परफॉर्मा यूज कर सकते हैं। राइट, एंड इसके बाद पोस्ट डेटेड एंट्रीज भी होती हैं, जो कि ये वो एंट्रीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा काफी सारी एडजस्टमेंट एंट्रीज भी होती हैं, जो कि हमें उस पर्टिकुलर डे के लिए कंफर्म नहीं होता है कि वो आज की डेट में ही होनी है और किस अमाउंट से होनी है, किस पार्टी के लेजर से होनी है, या काफी सारी चीजें होती हैं इसके लिए। तो उसको हम क्या करते हैं, पोस्ट डेटेड भी हम कर सकते हैं कि फ्यूचर डेट पे हम आगे की डेट पे अगर कोई एंट्री डालनी है तो वो डाल के पहले से ही रख सकते हैं। जैसे आज 6 तारीख है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि अगर 15 तारीख में एक एंट्री हो तो मैं पोस्ट डेटेड पे कर सकता हूँ उस एंट्री को।
तो वो एज अ पोस्ट डेटेड कंसिडर हो। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो रहेगी आपकी, ये है एंट्री लेवल की कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर मैं बात करूं कि टैली के अंदर जितने भी रिपोर्टिंग सिस्टम है, अपने जितनी भी रिपोर्ट्स है आपकी, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस या ट्रायल बैलेंस, सभी रिपोर्ट्स पे आपको राइट हैंड साइड में एक बात जरूर मिलेगा। ये राइट हैंड साइड वाली जो स्क्रीन है, इसमें सभी में आपको शॉर्टकट कीज दी हुई है। तो कहीं ना कहीं आप इस शॉर्टकट कीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट अगर मैंने ओपन किया, बैलेंस शीट में हमें बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाने पर यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस दे रहा है। अगर मुझे वर्किंग कैपिटल ऐड करना है तो मैं कर सकता हूँ, अगर डिसेबल करना है तो वो भी कर सकते हैं हम यहाँ से। जैसे मैंने डिसेबल किया तो वर्किंग कैपिटल यहाँ से हट गया। तो ये चीजें भी हैं यहाँ पर। स्टॉक वैल्यूएशन भी है आपका, स्टॉक वैल्यूएशन भी आप कर सकते हैं यहाँ से। स्केल फैक्टर आता है यहाँ से। स्केल फैक्टर अगर आपको थाउजेंड्स में देखना है, थाउजेंड्स में देख सकते हैं। बैलेंस शीट उसके अकॉर्डिंग आएगा। फिर देखिए, अगर मैं हंड्रेड्स में करूँ, हंड्रेड्स में करके अगर मैं सेव करता हूँ, तो रिपोर्टिंग जो है ना वो कुछ इस टाइप से हो जाएगा। तो ये चीज है, आप अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। कंट्रोल बी, बेसिस ऑफ वैल्यूज में जाके अगर इसका व्यू चेंज करना है तो व्यू चेंज करने के लिए चेंज व्यू में जाके वर्टिकली भी देख सकते हैं। ऐसे ही एक्सेप्शन रिपोर्ट्स भी आपको मिल जाएगा। एक्सेप्शन रिपोर्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर जाएंगे तो ये नेगेटिव लेजर्स का एक ऑप्शन दिया हुआ है। जितने भी बैलेंस शीट के अंदर नेगेटिव लेजर्स होंगे ना, वो सारे आ जाएंगे। तो ये एक फीचर भी है जिसका आप यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद सेव व्यू। सेव व्यू का फीचर ये है बेसिकली कि जैसे आपने कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेट किया, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के बाद अगर उसको आपको बार बार ना करना पड़े, वो परमानेंटली सेव हो जाए, इसके लिए आप उसमें सेव व्यू लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सेम हर रिपोर्ट्स के अंदर आपको राइट हैंड साइड में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप उनका यूज कर सकते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। एंड इसमें अगर आप और भी ऊपर में जो टॉप मेन्यू आप देख रहे हैं, इसमें ऑल के कंपनी, कंपनी से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो आप इसमें जा करके कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर शॉर्टकट कीज भी इवन दे रखी है यहाँ पे। अगर कंपनी चेंज करनी है तो F3 से कर सकते हैं, सेलेक्ट करनी है तो ऑल्ट F3 से कर सकते हैं। ऑल्ट F3 डायरेक्ट अगर आप प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वर्क करेगा, कंट्रोल F3 करेंगे तो शट हो जाएगा आपका कंपनी। तो ये सारी चीजें हैं। एंड इसमें अगर आप जाएंगे डेटा में ऑल्ट Y करके, तो यहाँ से आप बैकअप है, रिस्टोर है, स्प्लिट है, और अगर इन केस डेटा रिपेयर के लिए आता है तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने डेटा का बैकअप लिया हुआ हो। ठीक है, इसके बाद आप माइग्रेशन भी है आपका। अगर कोई कंपनी आपका लोअर रिलीज से हायर रिलीज में लाते हैं आप, तो माइग्रेट भी कर सकते हैं। ऑल्ट जेड किया हमने, ऑल्ट जेड के अंदर आपकी एक्सचेंज एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि इसमें ई इनवॉइस आएगा आपका, ई वेबल आएगा आपका, राइट। एंड इसमें डेटा सिंक्रोनाइजेशन भी आता है आपका। जैसे एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का डेटा अगर आपको मर्ज करना है, जो दो अलग अलग ब्रांचेस पे अलग अलग लोकेशंस पे यूज कर रहे हैं बट वो डेटा सेम ही है, या आपको दोनों को अपना जो डेटा है वो वाइस वर्सा अगर एक्सचेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं डेटा सिंक्रोनाइजेशन के थ्रू। देन इंपोर्ट है आपका, एक्सपोर्ट दिया हुआ है यहाँ पे, शेयरिंग का ऑप्शन दिया हुआ है। तो इंपोर्ट के थ्रू आप डेटा अगर किसी अदर प्लेस से लाना चाहते हैं, जैसे सीए ने आपको कभी डेटा कोई शेयर किया है जो कि एक्सएमएल फॉर्मेट में है, और उसको अगर आपको डालना है तो वो भी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी कर सकते हैं इजीली। अगर आपको एक्सपोर्ट करना है अपना कोई डेटा एक्सएमएल में, एक्सेल में, तो वो भी एक्टिविटीज हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर अदर है, जीएसटी रिटर्न्स है। एंड अदर्स में अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी जो कि आप वन वन गो में कर सकते हैं। जैसे ऑल लेजर अकाउंट्स, अगर आप लेजर अकाउंट्स करेंगे तो मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रुप अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करें तो कॉन्फ़िगर में जाकर कर सकते हैं। जैसे संडे डेटर्स लिया मैंने, अब संडे डेटर्स में इतने डेटर्स की लिस्ट आ गई। अब मैं अगर इनका जो लेजर है, अगर मैं उसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो पीरियड वाइज भी कर सकता हूँ,
यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैं अपने अकॉर्डिंग यस नो भी कर सकता हूँ, जैसे बिल वाइज डिटेल्स है, इन्वेंट्री है, मोड ऑफ पेमेंट है, एंड यहाँ पे ओपनिंग बैलेंसेस है, रनिंग बैलेंस को मैं यस कर लेता हूँ। इसको मैं पीडीएफ में कर लेता हूँ पहले तो। आप इसको एक्सेल में भी कर सकते हैं। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी ये फाइल जो जनरेट करी इसने, अब इसके अंदर जो फर्स्ट पार्टी है, तो पहले तो फर्स्ट पेज पे आपका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अच्छा, इसमें एंट्रीज जो है वो ज्यादा पास नहीं कर रखी है, जिसकी वजह से ये इस टाइप से दिखा रहा है। बाकी जब भी आप एंट्रीज अगर आपके पार्टी के लेजर में फुल ट्रांजेक्शन अगर पास होंगी, तो वो क्या करेगा, पूरा समरी दे देगा। पूरा लेजर रिपोर्ट जो है रहेगी आपकी कुछ इस टाइप से होगी, जैसे कोई भी एक लेजर ले लेते हैं। तो जितना भी लेजर रिपोर्ट रहेगा ना आपका, अब इसमें जैसे 2 एंट्रीज हो रखी है, तो 2 एंट्रीज और जितनी पेमेंट रिसीट, वो सारी चीजें आपकी वहां पर आ जाएगी एज इट इज पीडीएफ में। पीडीएफ में किया तो पीडीएफ में आ जाएगा, अगर आपने एक्सेल में किया तो एक्सेल में आ जाएगा। देन यहाँ पर शेयरिंग वाला एक ऑप्शन है। शेयरिंग वाले ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो शेयरिंग के अंदर आपको ईमेलिंग का ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो टैली से डायरेक्टली आप अपनी वाउचर है जैसे आपका, या अगर रिमाइंडर लेटर है, या और कोई लेजर रिपोर्ट है जैसे आपकी, या जीएसटी की रिपोर्ट है, बैलेंस शीट है, कुछ भी जो भी रिपोर्टिंग सिस्टम है या वाउचर्स है, आप वो डायरेक्टली अपने सीए को, अपने क्लाइंट्स को, अपने कलीग्स को तो आप शेयर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेल हो जाएगा आपका। देन इसके बाद यहाँ पर व्हाट्सएप का भी है ऑप्शन, जो कि अब आ चुका है। तो व्हाट्सएप भी आप इसमें चालू कर सकते हैं। चालू करने के बाद डायरेक्टली आपका मल्टीपल लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। ऑल्ट पी तो आपने देखा होगा। ऑल्ट पी कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल पे आप देख सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर का सेटअप है। प्रिंटर के बाद यहाँ पर आप नंबर ऑफ कॉपी सेट कर सकते हैं। अगर सपोज करिए आपके सेल्स के बिल हैं जो कि आपको एवरी टाइम प्रिंट लेने होते हैं, बट वो सिंगल ही पेज आता है। अगर आपको 2 सेट करना है, 3 सेट करना है, या 4 सेट करना है, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ पेजेस, अगर जैसे मैंने 3 किया तो 3 करने के बाद अगर आप इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे तो वो एवरी टाइम वो 3 ही प्रिंट दिखाएगा। देखिए ये नंबर ऑफ कॉपी जो है वो नंबर ऑफ कॉपी 3 हो जाएगा। तो ये भी बेनिफिट है इसके अंदर, जो कि आप ऑल्ट पी कॉन्फ़िगरेशन में जा करके यहाँ पर सेट कर सकते हैं। सिर्फ सेल का ही नहीं, आप डिलीवरी नोट का भी कर सकते हैं, रिसिप्ट, मटेरियल आउट का भी कर सकते हैं, सेल्स ऑर्डर है, कोटेशन है, परचेज इनवॉइस है, रिसिप्ट नोट है, परचेज ऑर्डर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सभी का कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कंपनी डिटेल्स में अगर आप जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपको इंक्लूड कंपनी लोगो भी है। तो लोगो भी आप लगा सकते हैं, जो भी आपका कंपनी का लोगो होगा उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। इसमें कंडीशंस होती है, जैसे कि इसका जो साइज है वो पिक्सल्स में 96 पिक्सल होना चाहिए विड्थ में, और 80 होना चाहिए हाइट में। और जो फाइल होगी आपकी वो बीएमपी या जेपीईजी फाइल ही होनी चाहिए, तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। एंड लास्ट है आपका हेल्प वाला ऑप्शन। हेल्प वाले ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ एडवांस एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि जो भी अपकमिंग रिलीज, जो न्यू रिलीज आई है, उसके रिगार्डिंग अगर आपको कुछ देखना है तो आप व्हाट्स न्यू पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो वो डायरेक्टली पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा ब्राउजर पे आपके। और जो भी न्यू रिलीज आई है उस रिलीज के अंदर क्या अपडेट किया गया है, क्या उसमें एडवांस फीचर्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर आपको शॉर्ट में समरी एक अपडेट मिल जाएगा कि ये एक्टिविटीज जो है आप कर सकते हैं आपकी न्यू रिलीज में। फिर अगर कोई भी अपग्रेड आता है तो आप हेल्प में जाके अपग्रेड में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपग्रेड, यहाँ रिलीज के अंदर अभी तो लेटेस्ट चल रहा है 4.1, और जो कि हम लोग यूज भी कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर रिलीज में नीचे कोई भी रिलीज नहीं लिखा रहा है। अदरवाइज वहाँ पर ना रिलीज लिखा हुआ आएगा कि ये रिलीज अवेलेबल है, आप लोग इसको अपग्रेड करिए। फिर यहाँ पे ट्रबल शूटिंग आ जाता है, जैसे कि एप्लीकेशन रिपेयर या डेटा रिपेयर जैसी एक्टिविटी अगर आपको करनी है, इन केस अगर डेटा में या आपकी एप्लीकेशन में कभी ऐसा आता है एप्लीकेशन रिक्वायर्ड या रिपेयर रिक्वायर्ड, तो वो आप कर सकते हैं यहाँ से हेल्प में जाके ट्रबल शूट।
फिर सेटिंग्स वाला भी ऑप्शन दिया हुआ है। सेटिंग्स में आप कुछ चीजें हैं जो चेंज कर सकते हैं, जैसे लैंग्वेज है, कंट्री है, स्टार्टअप है, डिस्प्ले है। डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको कुछ चीजें एडवांस लेवल पे देखने मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है शो फाइनल अकाउंट्स मेन्यू इन गेटवे ऑफ टैली। इस फीचर को अगर आप यूज करते हैं, जैसे मैंने इस पे एंटर किया एंड अब अगर मैं गेटवे ऑफ टैली पे जाता हूँ तो यहाँ से बैलेंस शीट आप देखेंगे तो बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस ये सब हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा फाइनल अकाउंट लिखा हुआ। एंटर करेंगे ना तो वो यहाँ पर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, ये सारी चीजें सिंगल उसमें ही सेपरेट कर दी है इसने। तो एक ये चीज भी आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए आप हेल्प में जाके ट्रबल इसमें सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले में जाकर के ही मिलेगा आपको शो फाइनल अकाउंट्स मेन्यू इन गेटवे ऑफ टैली। इसको मैं वापस से नो कर देता हूँ। और यहाँ पर बॉटम बार जो नीचे आता है उसको अगर आपको हाइड करना है तो एप्लीकेशन से वो भी कर सकते हैं। शो बॉटम बार का ऑप्शन दिया है, यहाँ से डिसेबल करेंगे तो वो हट भी जाएगा। देन यहाँ पे कलर भी है, साउंड भी है, ये चीजें भी आप कर सकते हैं। जैसे अभी ब्राइट कलर पे मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये सॉफ्ट भी हो जाएगा। तो थोड़ा डल में अगर देखना है तो वो चीज भी आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो हेल्प के अंदर ये कुछ एडिशनल सेटअप है जो आप कर सकते हैं अप एंड डाउन। यहाँ पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड भी है, जो परफॉर्मेंस इशू जिसको बोलते हैं कि कनेक्टिविटी अगर आपको कुछ देखना है तो उसकी एक्टिविटीज भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रॉक्सी अगर कुछ लगा रखा है आपने तो उसका सेटअप भी कर सकते हैं। ये क्लाइंट सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन भी देख सकते हैं, जो कि जनरली आपका डेटा सिंक्रोनाइजेशन में यूज होता है। एंड लास्ट है आपका अबाउट ऑप्शन। अबाउट में जब भी आप जाएंगे तो अबाउट के अंदर ना आपको आपकी प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, जिसमें एप्लीकेशन रिलीज, एप्लीकेशन पाथ, ये सारी डिटेल्स मिलती है। लाइसेंस इंफॉर्मेशन आ जाएगा आपका, जो भी सीरियल नंबर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे। एडिशन आ जाएगा, और कब तक के लिए वैलिड है TSS वो आ जाएगा आपका। यहाँ पे नंबर ऑफ यूजर आ जाएगा, कितने कितने यूजर तक की लिमिट है। जैसे सिल्वर यूजर लाइसेंस पे 1 यूजर का है तो 1 यूजर वहाँ पे आ रहा है। अगर एड ऑन्स आप कुछ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लोडेड वो भी आ जाएगा। डेटा इंफॉर्मेशन है, कनेक्टिविटी है, एंड कंप्यूटर की जो डिफॉल्ट सेटिंग्स बोलते हैं या कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं वो सारी चीजें भी आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। तो ये आपका जो सेशन है वो इसी अदर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग था। सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड। Yeah, thank you, Tarun and Aarti. Good. It was a knowledge sharing session. Good. And before wind up the session, we will take a small introductions of great HR. So, Ashwini, are you here? Yes, I'm here. Yeah, thank you. And go ahead. Thank you, Santada. Hello, everyone. Hope everyone is doing great. I'm here to introduce about the Great HR, which is an HR MS software, and I hope everyone is using in the corporate line. And it is for SME enterprises, also the small and medium enterprises. And HR MS software, the product name, the software name, what we are into is Great HR. Great HR is the software covers the various models, that is HR software, payrolling software, leave management of employee, attendance management, and we also have employee self-service portal, which means employee can have the access in their mobile wherein they can download the application and access it from their end. And we also have performance management system in it. With Great HR, what system automatically fall in places, wherein every HR process, it is a complicated thing, but no one rectifies it. So we have come up with a software which gives you a streamlined, proper work, wherein you can use it and use it in a proper way where it is very comfortable to everyone, for HR department and as well as employees as well. Wherein I will take this session, we will take this session next week over depth about the product,
the coming Saturday, we'll give you the product knowledge on it. So I request everyone who have joined here, inform your team members or the HR department managers to join the session wherein I can give you the brief detail about the product. I request everyone as well to come up with your reference wherein it should be an interactive webinar wherein it should be productive to you and for us both. So I want everyone to bring at least some reference from your end. So we'll meet you again next Saturday for a proper great HR. Thank you, Sampada. Yeah, thank you, Ashwin. everyone. Thank you.